बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास नाइन्थ में ज्योग्राफी में चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप विषय में आगे पढ़ेंगे। इसके पहले भी वीडियो भेजा गया था, उसको आप लोगों ने देखा होगा। उसमें आगे है द आइसलैंड, द्वीप समूह। आज हम लोग द्वीप समूह के विषय में जानकारी करेंगे, जानेंगे। आप लोग बार बार अपनी पुस्तक पढ़ते रहिए। पुस्तक को जितना अधिक पढ़ेंगे उतना अधिक समझ में आएगा। चैप्टर 2 में पेज 14 पर है, 14 पर है द आइसलैंड, द्वीप समूह। You have already seen that India has a vast mainland. Besides this, the country has two groups of islands. Can you identify these island groups? आइसलैंड देखिएगा, आइसलैंड का एक द्वीप समूह का एक चित्र बना हुआ है, फिगर बना हुआ है, एन आइसलैंड लिखा है। Located the Lakshadweep island group lying close to the Malabar coast of Kerala. This group of island is composed to small coral island. Small coral island. Earlier they were known as locative Mankoi, मिनिकॉय कहते नहीं, पहले क्या नाम था? लोकाद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीन द्वीप। लेकाद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीन द्वीप। In 1973, these were named as Lakshadweep. It covers a small area of 32 square kilometer. Kavaratti Island is the administrative headquarters of Lakshadweep. This island group has great diversity of flora and fauna. The Pitli Island, which is inhabited, has a bird sanctuary. द्वीप समूह आप पहले ही देख चुके हैं। भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूहों को पहचान सकते हैं? केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा इमिन द्वीप
के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह का पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पृथ्वी द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप हैं। यह द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या में बहुल बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। उत्तर से अंडमान और दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित हैं एवं वहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। Now you see the elongated chain of Iceland located in the Bay of Bengal, extending from north and south. These are Andaman and Nicobar Islands. They are bigger in size and are more numerous and scattered. The interior groups of Iceland is divided into two broad categories. The Andaman and in the north and Nicobar in the south. It is believed that these islands are an elevated portion of submarine mountains. These island groups are of great strategic importance for the country. There is great diversity of flora and fauna in this group of islands. To this island lie close to equator and experience equatorial climate and has thick forest cover. A detailed account of the different physiographic units highlights the unique features of each region. It would, however, be clear that each region complements the other and makes the country rich in its natural resources. The mountains are the major sources of water and
forest belts. The northern plains are the granaries of the country. They provide the base for yearly civilization. The plateau is a storehouse of minerals which has played a crucial role in the industrialization of the country. The coastal regions and island groups provide cities of fishing and port activities. Thus, the diverse physical features of the land have immense future possibilities in development. Do you know कि आप जानते हैं भारत एक मात्र शक्ति ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरियन द्वीप पर स्थित है। विभिन्न भू आकृतियां विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि विभाग एक दूसरे से पूरक हैं और वे देश की प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान तथा देश के अन्य भंडार हैं। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। भैया और बहनों, आप लोग पुस्तक को बार बार पढ़िए। जितने अधिक पुस्तक को पढ़ेंगे उतने का आपको समझ में आएगा और इसका जो क्वेश्चन आंसर है हम उसको भेजेंगे लिख करके। आप लोग लिखिएगा और याद करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।